Hello and welcome to We Learn Networks. This is session number 2 of subject Core Java, and today we will cover the following topics, that is history of Java, features of Java language, architecture, nature and portability, difference between Java and C++, the Java virtual machine and Java program structure. First of all, we will discuss about history of Java. Java, it was originally for intelligent consumer electronic devices like cell phone, was invented for cell phones and then used for creating web pages with dynamic content. Now, also used for develop large scale enterprise applications. The previous name of Java was Oak and it was developed by group of 4 people headed by जेम्स गॉसलिंग. सबसे पहले जावा का सबसे पहला नाम था ओक OAK और वो डेवलप करी गई थी जेम्स गॉसलिंग के द्वारा. द फीचर्स ऑफ जावा लैंग्वेजेस आर इट इज सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पोर्टेबल, डिस्ट्रीब्यूटेड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, robust and secure. Now first feature is simplicity. Java was designed to be easy for professional programmers to learn and use effectively. Java का मेन ओरिजिन या फिर जिसको हम कहें डिज़ाइन था वो इजी रखा गया था ताकि प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स के लिए भी प्लस जो उसको लर्न कर रहे हैं उनके लिए भी आसान हो उसको यूज करना. Assuming that you have some programming experience, you will not find Java hard to master. अगर आपके पास में कुछ भी प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है, इफ यू नो सी, यू नो C++, देन यू कैन कोड फॉर जावा. If you already understand the basic concept of object oriented programming, learning Java will be even easier. और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा अगर आपको ये भी पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, तब आपके लिए जावा को सीखना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है. Moving to Java will require very little effort because Java inherits the C++ syntax and many of the object-oriented features of C++. Most programmers have little trouble learning Java. अगर आपको C++ का सिंटेक्स आता है तो ये आपके लिए और भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि आप जावा को यूज़ कर सकते हैं, उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडनेस, it means the using of object-oriented programming concepts in your Java programs. Although influenced by its predecessors, Java was not designed to source code compatible with any other language. Means हम Java को किसी दूसरे source code compatible language के साथ में use नहीं कर सकते, वो अकेले ही use की जाती है. This allowed Java team the freedom to design with a blank slate. और ये allow करती है Java programmers को कि वो from the scratch start कर सकते हैं, प्लस वो कहीं किसी भी पुराने प्रोग्राम को दोबारा से रीयूज कर सकते हैं with the help of concept known as inheritance in OOPS. One outcome of this was clean, usable, pragmatic approach to ऑब्जेक्ट्स. और इसका सबसे बड़ा आउटपुट हमारा ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं किसी भी अप्रोच या किसी भी प्रोग्रामिंग डिजाइन को यूज करने के लिए. बोरोइंग liberally from many seminal object software environments of the last few decades, Java manages to strike a balance between purist everything is an object paradigm and the pragmatist, that is stay out of my way model. जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस प्रोवाइड करती है एक प्योरिस्ट के बीच में और एक प्रेगमिस्ट के बीच में. मीन्स ये भी कहती है कि सारी चीज़ जितनी भी है हमारी वो ऑब्जेक्ट के अंदर है, और ये भी कहती है कि स्टे आउट ऑफ माय वे. मीन्स कि अगर मैं यूज़ करी जा रही हूँ जावा, अगर कोई प्रोग्रामर जावा को यूज़ कर रहा है तो वो सिर्फ जावा को ही यूज़ करेगा और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर ही होती हैं.
The object model in Java is simple and easy to extend, while primitive types such as integer are kept as high performance non-objects. जितने भी हमारे मॉडल होते हैं जावा के अंदर, वहाँ पे सबसे बेसिक प्रिमिटिव टाइप हमारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और बाकी जितने भी इंटीजर या कैरेक्टर या फ्लोट बच जाते हैं उनको हम एज नॉन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं. पोर्टेबिलिटी, कोई भी जावा प्रोग्राम को हम पोर्टेबल कहते हैं बिकॉज जितना भी हमारा जावा कोड होता है उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं बहुत सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स के लिए. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जावा का प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद में एक डॉट क्लास फाइल बनाता है जिसमें हमारे बाइट कोड्स रखे होते हैं. Java is known as a portable language because Java code can execute on all major platforms. What's more, once you have compiled your Java source to bytecode.class file, those files can be used on any Java supported platform without modifications, unlike many other languages which require compiling machine code for each platform. डिस्ट्रीब्यूटेड, जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स यूज करते हैं वहां पे जावा का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल हमें समझ में आता है. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नेटवर्किंग में जब हम प्रोग्राम्स को रन करवाना चाहते हैं, जावा एक बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करवाता है जो कि हम सपोर्ट करते हैं थ्रू RMI मींस रिमोट मेथड इन्वोकेशन. ये एक फीचर होता है जो कि किसी भी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स पे हम प्रोग्राम को रन करवाने में हेल्प करता है. Java is designed for distributed environment of the internet because it handles TCP/IP protocols. In fact, accessing a resource using a URL is not much different from accessing a file. Java also supports RMI means remote method invocation. These features enable a program to invoke methods across a network. हाई परफॉर्मेंस वो फीचर होता है जावा का जहां पे हम बाइट कोड्स का यूज करते हैं और ऐसे आर्किटेक्चर का यूज करते हैं जहां पे जावा के कंपाइलर्स को ये फिक्र नहीं रहती कि उसे उसी मशीन पे रन होना है. हम बहुत सारे डिफरेंट मशीन्स पे उसको यूज कर सकते हैं. प्लस जो जावा है वो कंपाइलर के साथ साथ एक इंटरप्रेटर भी यूज करती है ताकि उससे उसे हाई परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटेबिलिटी मिले. Java bytecodes can be compiled on the fly to code that rivals C++ in speed using a just-in-time compiler. ये जो just-in-time compiler होता है यही हमारा एक वो फीचर देता है जहाँ पे जिसको हम कहते हैं high performance. Several companies are also working on native machine architecture compilers for Java. These will produce executable code that does not require a separate interpreter and that is indistinguishable in speed from C++. Robustness means no duplicacy. यहाँ पे हम ऐसे जावा प्रोग्राम्स बनाते हैं जो कि नॉन डुप्लीकेट होते हैं. The many multi-platform environment of web places extraordinary demands on a program because the program must execute reliably in a variety of systems. यहाँ पे जितने भी हम मल्टी प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं वहाँ पे हमारा मेन टारगेट होता है कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हो वो रिलायबली एग्जीक्यूट हो चाहे हम कितने भी वैरायटी ऑफ सिस्टम्स को यूज कर ले. Thus, the ability to create robust programs was given a high priority in design of Java. इसीलिए हम जब जावा के प्रोग्राम्स बनाते तो ये चाहते कि हमारे प्रोग्राम्स जो हो वो रॉबस्ट हो, कोई डुप्लीकेसी ना हो और रिलायबल हो. अगर हमारा जावा का प्रोग्राम रॉबस्ट नहीं है, रिलायबल नहीं है, मींस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने इस फीचर को फेल कर जाता है और वो जावा वहीं पर ही फेल कर जाती है. टू गेन रिलायबिलिटी जावा रिस्ट्रिक्ट्स यू इन की फ्यू areas to force you to find your mistakes early in program development. At the same time, Java frees you from having to worry about many of the most common causes of programming error. हम बहुत सारे प्रोग्रामिंग एरर्स के बारे में यहाँ पे वरी नहीं करते क्योंकि जावा उनको ऑटोमेटिकली डील कर देती है और जावा एक स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज है, मींस इट्स अ केस सेंसिटिव और जितने भी प्रोग्राम या फिर जितनी भी सिंटेक्स रिलेटेड एरर है वो कंपाइल टाइम पे चेक किए जाते हैं प्लस वो रन टाइम पे भी चेक किए जाते हैं. Many hard to track down bugs that often turn up in hard to reproduce runtime situations are simply impossible to create in Java. जितने भी प्रोग्राम जितने भी बग्स हैं जो
बहुत ही डिफिकल्ट होता है ट्रैक डाउन करना, वो भी हम जावा में ट्रैक कर सकते हैं। बिकॉज जितने भी हमारी प्रोग्राम होती है वो पहले कंपाइल होते हैं, उसके बाद में इंटरप्रेट करी जाते हैं, उसके बाद में एग्जीक्यूट करी जाती है, इसलिए यहाँ पे हार्ड टू ट्रैक डाउन बग्स को भी ट्रैक किया जा सकता है। नोइंग that what you have written will behave in a pre-decidable way under diverse conditions is a key feature of Java. Multi-threadedness means we can work on Java with multiple threads. हम create कर सकते हैं multiple threads in Java. Java was designed to meet the real-world requirement of creative interactive networked programs, and to accomplish this, Java support multi-threaded programming, which allows you to write programs so that you can do many things simultaneously. A brief example of multi-threaded systems are games, जहाँ पे जब आप गेम्स खेलते हो आपके एक लेफ्ट कॉर्नर में स्कोर्स कैलकुलेट होते रहते हैं, आपकी मेन स्क्रीन पे प्लेयर रन करता रहता है या जो भी टास्क होता है वो परफॉर्म होता रहता है। ये सब हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स। With threads, the Java runtime system comes with an elegant yet sophisticated solution for multiple processing synchronization that enables you to construct smoothly running interactive system. जितने भी हम Java runtime systems बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा elegant होते हैं, बहुत ही ज़्यादा sophisticated होते हैं और इसीलिए उनको multi processing करने में, multi processing synchronization देने में आसानी होती है। Java is easy to use approach to multi-threading allows you to think about the specific behavior of your program. Java की easy to use approach ही हमें multi-threading करने पे allow करते क्योंकि ये हमें सोचने पे मजबूर कर देते कि हमारे प्रोग्राम का एक specific behavior होता है। Java is secure because Java use many of security algorithms that we know today. Java is considered more secure than other languages for several reasons. The first one is the Java compiler catches more compile time errors other than languages like C++ will compile programs that produce unpredictable results. Java का compiler almost every compile time errors को catch करने की capable है. Plus Java does not allocate direct pointers to memory. हम मेमोरी पे ही वर्क नहीं करते, ना ही हम पॉइंटर्स पे वर्क करते हैं, जिससे कि जितने भी एक्सीडेंटल रेफरेंस मेमोरी होती हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा बिलोंग जो करती हैं हमारी कर्नल सिस्टम्स को, वहाँ यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाते। जावा डज नॉट एलोकेट डायरेक्ट पॉइंटर्स टू मेमोरी, दिस मेक्स इट impossible to accidentally reference memory that belongs to other programs or the kernel. Java lifecycle, basically Java goes under 4 phases. The first one is edit where programmer writes the program. सबसे पहले स्टेप जब हम Java lifecycle का पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये डील करते हैं कि प्रोग्राम लिखा जाना चाहिए और यही हमारा पहला फेस होता है जिसको हम कहते हैं एडिट। जब प्रोग्राम लिख दिया जाता है हम हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करवाते हैं इन फॉर्म ऑफ बाइट कोड्स। जब कंपाइल हो जाता है तो कंपाइलर क्रिएट करता है डॉट क्लास फाइल को। जब प्रोग्राम कंपाइल कर दिया जाता है उसके बाद में बाइट कोड्स को स्टोर किया जाता है, लोड किया जाता है क्लास लोडर के थ्रू इनटू द मेमोरी। क्लास लोडर स्टोर्स बाइट कोड इन मेमोरी एंड लास्ट थिंग इज टू एग्जीक्यूट interpreter translate bytecodes into machine level language and then it goes for execution. Now there is some difference between .java file, .class file. जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम को सेव किया जाता है .java नाम से, .java एक्सटेंशन से, और जब उस प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया जाता है वो कन्वर्ट हो जाती है .class फाइल में। इस .class फाइल में हमारे पास में सिंपल कोड नहीं होता, हमारे पास में बाइट कोड्स यूज करे जाते हैं जिसको हम C++ में .exe फाइल कहते हैं। जो हमारी .class फाइल होती है वो एक इंटरमीडिएट फाइल होती है जिसको यूज किया जाता है बाय JVM। Source code .java compiled into bytecodes, that is .class file, which is equivalent to .exe file in C++. The Java API means Java Application Programming Interface is a large collection of ready-made software components. It is grouped into libraries of related classes and interfaces. These libraries are known as
पैकेजेस पहले से ही इनबिल्ट है, जैसे हमारे पास में सी या सी प्लस प्लस में हेडर फाइल्स होती थी, यहाँ पे हमारे पास में पैकेजेस होते हैं, सेम काम करते हैं जो लाइब्रेरी फंक्शंस, हमारी जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं वो इन्हीं पैकेजेस के अंदर होते हैं। प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज कंसेप्ट या इंपॉर्टेंट टेक्निक हम यूज करते हैं, उसका नाम है JVM, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन। और लास्ट जब हम JVM से निकल के आते हैं हमारे पास में मशीन कोड बचता है जो एग्जीक्यूशन के लिए जाता है। दिस इज द सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ JVM। प्रोग्राम होता है हमारा डॉट जावा एक्सटेंशन से, यहाँ पे माई प्रोग्राम डॉट जावा कंपाइल किया गया है और उसको कन्वर्ट किया जाता है माई प्रोग्राम डॉट क्लास फाइल में। जब डॉट क्लास फाइल को भेजा जाता है फॉर इंटरप्रिटेशन और फॉर एग्जीक्यूशन, मेन काम आता है JVM का, जो उसे नेटिव मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। लाइक अगर मैं यूज कर रहा हूँ यूनिक्स या यूज कर रहा हूँ विंडोज, तो मेरे प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ डॉट क्लास फाइल को उठाऊंगा, JVM को दूंगा और वो उसे हमारे मशीन लेवल में कन्वर्ट कर देगा, नेटिव मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। Some similarities between C++ and Java, both use primitive types like integer, double character, control structures like if, else, switch, while or for, arithmetic expressions like plus, minus, equals to, arrays use करता है C++ भी और Java भी, दोनों में ही classes का concept आता है because both are object oriented programming and both have main structure. The difference between C++ and Java is that the basic difference, the main difference of C++ and Java is garbage collection. C++ does not have garbage collection, but Java has automatic garbage collection. C++ has operator overloading, Java does not. C++ says function, Java says method. These requires no explanation unless student already knows C++. JVM एंड पोर्टेबिलिटी। जब हम JVM की बात करते हैं हम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं पोर्टेबिलिटी पे। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके डायग्राम में, जब हम यूज कर रहे हैं कोई भी डॉट जावा एक्सटेंशन से जो जितनी भी फाइल्स है, जब हम उसे कंपाइल करते हैं वो कन्वर्ट किया जाता है बाइट कोड्स में, जिसको स्टोर किया जाता है इन डॉट क्लास फाइल। जब जो डॉट क्लास फाइल होती है वो डॉट क्लास फाइल को जब हम JVM को देते हैं वो उसे उसके नेटिव मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। मींस अगर मैं विंडोज यूज कर रहा हूं तो JVM उसे विंडोज के कोड में चेंज करेगा, अगर मैं सोलारिस यूज कर रहा हूं तो वो सोलारिस में चेंज करेगा, और अगर मैं मैक OS यूज कर रहा हूं JVM उसे मैक OS के नेटिव मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा, जिससे कि हमारे पास में पोर्टेबिलिटी आती है। मींस हम अपने जावा के प्रोग्राम को किसी भी मशीन पर रन करा सकते हैं। Before you start, you need to install the Java Standard Edition Development Kit, जिसको हम JDK 6 बोलते हैं। यही एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जिसको हमें यूज करना पड़ता है अगर हमें जावा के प्रोग्राम्स हमारे सिस्टम पे रन करवाने पड़ते हैं। और जब आप एक बार इंस्टॉल कर देते हैं JDK को, यू हैव टू चेंज और यू हैव टू मॉडिफाई जावा पाथ एनवायरनमेंट जस्ट टू यूज और जस्ट टू कंपाइल योर प्रोग्राम्स। आपके प्रोग्राम्स को कंपाइल करवाने के लिए हमें जावा पाथ एनवायरनमेंट देना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ता है सिस्टम प्रॉपर्टीज पे। सिस्टम प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद में हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करना पड़ता है। एनवायरनमेंट वेरिएबल पे जाने के बाद में हमें एडिट पे जाना पड़ता है, और एडिट में जाने के बाद में हमें वो डायरेक्टरी का पाथ देना पड़ता है जहां पे आपकी बिन फाइल स्टोर है। Next thing is you have to use or you have to install TextPad editor like Notepad. If you don't have any text editor, you have to install TextPad editor. अगर आपके पास में नहीं है, अगर आपके पास में सिर्फ Notepad भी है, you can work on Notepad. The first program to write hello world, the basic requirements you need Notepad or any TextPad editor. Create a new directory on C drive, name it Java projects or simply Java. Open new files, save it as hello world.java in new directory hello world inside the Java project directory, and write the following code. The first one is class hello world. Next line is
public static void main string args and system.out.println hello world. Now the basic यहाँ पे आपको दिख रहा है system.out.println, जैसे हमारा C++ में सी आउट होता है और C में printf होता है, हमें जावा में system.out.println यूज करना पड़ता है और void main हम रिप्रेजेंट करते हैं public static void main string args से. These are some specific instructions जो हमें फॉलो करनी पड़ती है एक प्रोग्राम को लिखने के लिए. Now how to compile and run the program. हमें हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करवाना पड़ता है ऑन कंसोल, और अगर आप यूज कर रहे हैं विंडोज तो मेन कंसोल आपका होता है कमांड प्रॉम्प्ट. गो टू कमांड प्रॉम्प्ट and go to the main directory, C directory, and go to the following location as mentioned in your screen. C drive, Java projects, hello world directory. आपको इस पे जाना है, जैसे कि लिखा हुआ है go to the following hello world directory, जहां पे आपका hello world का प्रोग्राम स्टोर है. C drive, Java projects, hello world. जब आप चले जाएंगे आपको अपने प्रोग्राम को कंपाइल करवाना पड़ेगा, और वो हम कंपाइल करवाते हैं विद जावा सी या फाइल नेम hello world.java. जब आपकी फाइल एग्जीक्यूट हो जाती, कंपाइल हो जाती, यू हैव टू रन योर फाइल दैट इज java hello world.class. Note, type all class codes, commands and file name exactly as shown. Both the compiler and Java launcher are case sensitive. जितने भी प्रोग्राम आप यूज कर रहे हो, अगर आप यूज कर रहे हो कैपिटल लेटर्स, तो आपको अपने प्रोग्राम को, या फिर जब आप कंसोल पे काम कर रहे हैं, आपको वो भी कैपिटल लेटर्स में ही देना है, क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और अगर आप उसको यूज नहीं करते हो आपके प्रोग्राम्स वर्क नहीं करेंगे. अ क्लोजर लुक. 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स जो आपके प्रोग्राम में देखे जाते हैं वो होता है सोर्स कोड जो कि होता है .java एक्सटेंशन के साथ, आपकी क्लास फाइल जो कि होती है .class एक्सटेंशन से, और लास्ट होता है आपका मेन मेथड जो कि यूज किया जाता है एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड में. Comments are ignored because compiler do not understand the comments. और last 2 supported kind of comments होते हैं /*/* and // text. The text compiler goes for as a comment. The most basic form of class definition is class name and goes into the curly braces. In Java programming language, every application must contain a main method which is used as public static void main. Everything here signifies a meaning. Public is used because to get into every program. जब हम पब्लिक यूज कर रहे हैं हम उसको पब्लिक बनाते ताकि कोई भी मेन क्लास या कोई भी क्लास इसको एक्सेस कर सके. स्टैटिक इसलिए बनाते हैं ताकि हम उसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करें. अगर हमें मेन प्रोग्राम के लिए ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा देन वी आर नॉट एबल टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर मेन मेथड. तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना पड़ता है. और लास्ट हमारा जाता है स्ट्रिंग args. स्ट्रिंग args हमारे आर्ग्यूमेंट वेक्टर्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिनको अगर हमें रन टाइम पे कोई भी इनपुट देना है वो इनपुट थ्रू args जाता है. दिस इज द स्ट्रिंग एरे. args जो हम यूज कर रहे हैं वो एक स्ट्रिंग एरे होता है जिसको हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कहते हैं, क्योंकि हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते टाइम उसको अलोकेट करते हैं. द मेन मेथड इज द एंट्री पॉइंट, और जितने भी प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं वो हमारे मेन मेथड से स्टार्ट करे जाते हैं. system.out.println hello world uses the system class file for an API और प्रिंट करवाता है ये मैसेज जो कि जितना भी हमारा डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है. दिस इज द फॉर्मेटेड आउटपुट. अगर आपको फॉर्मेटेड आउटपुट चाहिए यू हैव टू यूज सम एस्केप कैरेक्टर्स. बेसिक दिस इज द प्रोग्राम जब हम यूज करवा रहे हैं कुछ भी प्रिंट कराने के लिए एक फॉर्मेटेड वे में, जैसे कि हम सी में या C++ में यूज करते हैं \n, सेम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. Some escape sequences that we use in Java are \n, \t, \r means for return cartridges या carriage return के लिए, double / just to print \, and // code means double quotes को print कराने के लिए. Do it yourself. These are the questions that you have to do by yourself. First,
write down the key features of Java, and second one is what are the basic requirements to execute a Java program. Thank you and have a nice day.